Greetings to the esteemed guests, enthusiastic participants, my hardworking. I welcome you back to the next panel discussion, which is on a very crucial and thought provoking agenda. That is, geopolitical implication of American exit from the Afghanistan. We feel proud and honored to welcome our next guest of honor, Lieutenant General Syed Atta Hasnain. He is the retired Lieutenant General of the Indian Army. He completed his school education at Sherwood College, Nainital, and thereafter attended St. Stephen's College, Delhi, where he received a BA degree in history. His last assignment in service was Military Secretary of the Indian Army. Prior to that, he was the General Officer commanding 15 Corps in the state of Jammu and Kashmir. Amongst other appointments, in 2018, General Hasnain was appointed as Chancellor of Central University of Kashmir. On 21st Feb 2020, he was appointed as the member of the National Disaster Management Authority in the status of Secretary to the Government of India. He is currently the member of the Empowered Committee for Information and Communication set up by the PMO. We are blessed to have him live, speaking on the agenda, geopolitical implications of the American exit from Afghanistan. We welcome you, sir. Now, I would like to call our moderator, Mr. Ritik Singh, to moderate the panel discussion. Over to you, Ritik, sir. Thank you, Raghav and Kashish, for that wonderful introduction. And Jai Hind, Syed sir. Thank you so much. Thank you so much, sir. सर आज जो हमारा जो इशू है वो बहुत ही डाइवर्स इशू है और बहुत ही जियोपॉलिटिकली ये बहुत इम्पोर्टेंट इशू है क्योंकि सेंट्रल एशियन पॉलिटिक्स, साउथ ईस्ट एशियन पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा ही इस पे डिपेंड करेगी और किस तरीके से आने वाले समय में ये चीज़ें प्ले आउट होंगी, किस तरीके से जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो किस तरीके से आफ्टर यूएस विड्रॉवल फ्रॉम अफगानिस्तान प्ले आउट करेंगे। इस पर अपने पूरे इंसाइट के साथ सैयद सर आएंगे एंड सैयद सर ने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन भी हमारे लिए तैयार किया और क्योंकि मुझे इस बात की आदत है क्योंकि सर जब भी काशी मंथन में आए थे और मुझे वो सेशन आज भी याद है जिसमें उन्होंने चूल्हा पोस्ट वाला पूरा मैप दिखाया था एंड उस पर उन्होंने बहुत अच्छे से बहुत क्लियरली उस पूरे पॉइंट को समझाने की कोशिश की थी एंड ओवर टू यू सैयद सर फॉर द ओपनिंग इंटरवेंशन सर। Thank you, Ritik. Thank you very much for inviting me for this session. Am I audible to everyone? Yes, sir. Completely audible, sir. Okay. Thank you. Wonderful. Great. Thank you so much. We are already past our start time. So I won't waste any more time. What I will do is I'll just share my screen. 5-7 minutes, 7-8 मिनट मैं आपको शुरू में मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, which I think will come in very handy when the moderated session is in progress at that time. आप एक मुझे दीजिए मुझे मिनट तो मैं just share the screen. ये मैप एशिया का मैप है. Generally covers a part of Europe, a part of Southeast Asia, a little bit of Africa, much of the Pacific Ocean, and a lot of the Indian Ocean. इसमें शुरुआत में एक लेसन से करता हूँ जो मैं समझता हूँ कि आजकल के युवकों को anyone who's dealing with international affairs must understand. बीचों बीच आपको मिलेगा एक map of Jammu and Kashmir as a part of the Indian state. अगर आप इस पे ध्यान दें तो ये मैप बिल्कुल सही है जैसे मैप जम्मू एंड कश्मीर का होना चाहिए। बहुत दफे आपको लोग मिलेंगे जो गूगल से आखिरी मिनट पर मैप को निकालेंगे और आपके सामने प्रेजेंट करेंगे और कभी ये नहीं नोटिस करेंगे उसमें कि कितना हिस्सा जम्मू एंड कश्मीर का वो पाकिस्तान में दिखाया है और कितना उसका चाइना में दिखाया है। याद रखिए ये एक लॉ है, भारत का एक लेजिस्लेटेड there's a law on this, cartographic law है जिसके मुताबिक आपको भारत के कंटूर्स हैं जितने जो बाउंड्रीज हैं उनको बिल्कुल सही दिखाना है और ये तभी मैंने प्रयास किया आपको दिखाने का कि ये बिल्कुल सही मैप है, इसमें कोई गलती नहीं इस मैप में। ओके, शुरुआत यहां से करते हैं। 2-3 चीजें मैं आपको सिर्फ बताऊंगा। इसमें इस मैप के सेंटर में जम्मू एंड कश्मीर है
इसके इर्द गिर्द ऑन वन साइड इज पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर एंड एट द मोमेंट एंड पाकिस्तान ऑन द अदर साइड। उस तरफ जो है चाइना, तिब्बत, नॉर्थ में आप देखें तो ताजिकिस्तान थ्रू दी वखान कॉरिडोर, सेंट्रल एशिया। इस एरिया को बहुत स्ट्रेटेजिक सर्कल्स में बहुत अहमियत दी जाती है। दिस इज द एरिया ऑफ द ओल्ड ग्रेट गेम, द ओल्ड ग्रेट गेम, एंड नाउ इट इज द एरिया ऑफ द न्यू ग्रेट गेम। अगर आपको एनजीजी और ओजीजी के बारे में आपने पढ़ा नहीं है तो फिर आप अफगानिस्तान, ईरान, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के ऊपर टिप्पणी करने के लिए लायक नहीं है, ये याद रखिए। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस बेसिक फैक्ट, strategic fact. This area of the old great game was the area of competition between the old Russian Empire and the British Indian Empire. यहां तक कि ब्रिटेन ने ये वखान कॉरिडोर बनाया भी था इसी के लिए, ताकि सेंट्रल एशिया और भारत के बीच में एक कॉरिडोर बना रहे, जिससे कि रशिया जो है वो नीचे उसके इन्फ्लुएंस ना आए। दूसरी चीज उनको मालूम था कि रशिया के लिए, सोवियत यूनियन के लिए, फिर बाद में रशिया के लिए सबसे बड़ी बात थी एक्सेस। सी अगर रशिया को आप देखें तो रशिया का या तो एक्सेस है पैसिफिक ओशन में यहां इस तरफ, या एक्सेस है इनटू यूरोप ऑन द अदर साइड, द बाल्टिक सी एंड दोज एरियाज, मगर कोई एक्सेस जो है डाउन साउथ वार्म वाटर्स में नहीं है, और सिर्फ जरिया एक है जहां से ये access मिल सकता है, and that is through Central Asia. And Central Asia in this case means through the Central Asian republics, Afghanistan, Pakistan or Iran into the Arabian Sea or the Indian Ocean. This will give it a huge fillip in terms of commerce, in terms of accessibility. अब आप देखें अगर भारत को भी अगर कुछ रूस से कुछ चाहिए तो उसको इस रास्ते लाना पड़ता है, तकरीबन आप समझिए कि बाल्टिक सी से होकर यूरोप के जरिए, सुएज कैनाल के जरिए लेकर यहां आना पड़ता है। मगर अगर ईरान के पास यहां पर हमारा चाबहार में पोर्ट है तो यहां से हम कनेक्ट करें और नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर के साथ कनेक्ट करें तो सीधा मॉस्को पहुंचते हैं। तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि दुनिया का क्या की बनावट ऐसी है, वर्ल्ड इज मेड अप इन सच अ वे, सम नेशंस हैव अ स्ट्रेटेजिक एडवांटेज, और कुछ नेशंस हैं जिनके पास एडवांटेज नहीं है। अब चाइना को देखिए आप, चाइना का मेन एरिया जो प्रोडक्शन का है वो यहां है, ये राइट ऑन द ईस्टर्न सीबोर्ड, पूरा मैन्युफैक्चरिंग यहां होती है उनकी, और यहां पर पहुंचने के लिए उनको एनर्जी पहले लानी पड़ती है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जो सब यहां से आती है थ्रू द सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू साउथ चाइना सी। और जब कंटेनर ट्रैफिक पूरा उनका, जो कंटेनर्स में जो उनका मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होते हैं वो सब इसी जरिए जाते हैं यहां से। आयरॉनिक कि चाइना के पास जो समुंदर है वो तो यहां है, मगर वो समुंदर उसके फायदे का समुंदर नहीं है, वो समुंदर जो उसके फायदे का है वो ये इंडियन ओशन, which is why the world recognizes it. The United States also recognizes कि अगर चाइना को कंटेन करना है तो ये और ये मिलाकर, इंडो पैसिफिक मिलाकर उसको कंटेन करना पड़ेगा मिलिटरली, जियो स्ट्रेटेजिकली, जो पॉलिटिकली मिलाकर, by having the right relationshiप्स with the nations here. अगर आप देखें तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, चार का अगर कोड बन जाए, उसमें वियतनाम, कोरिया, फिलीपींस भी कल मिल जाए तो कितना बड़ा ये यहाँ पर कितना बड़ा अरेंजमेंट हो जाता है, स्ट्रेटेजिक अरेंजमेंट हो जाता है कुछ देशों के बीच में। ये बहुत ध्यान में रखने की बात है। अब मैं आया अफगानिस्तान पे, क्योंकि बात तो अफगानिस्तान की हम करने वाले हैं, मगर ये सब चीजें कनेक्ट रहती है इसके साथ। अफगानिस्तान एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, अफगानिस्तान को भी जरिया चाहिए टू द सी, दैट इट गेट्स थ्रू पाकिस्तान, थ्रू द स्टेट पोर्ट ऑफ कराची, या आजकल ग्वादर के थ्रू, या फिर थ्रू ईरान
टू द पोर्ट ऑफ चाबहार या बंदर अब्बास, ठीक है, इसी के जरिए मिलता है। अब अमेरिका जो है वो कोशिश कर रहा है अफगानिस्तान से हट जाए। 21 साल के बाद, 20 साल के बाद वो कह रहे हैं कि हम हटने वाले हैं। जब हट जाएंगे यहां से तो वो चाहते हैं कि हमारी इन्फ्लुएंस तब भी बनी रहे। वो इन्फ्लुएंस कैसे बनी रहेगी, मिलिट्री इन्फ्लुएंस कैसे बनी रहेगी, या तो वो पाकिस्तान में किसी तरह के बेस बना के रखें और उसके नेगोशिएशन चल रहे हैं उनकी, और या तो ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इन देशों के साथ उनके कुछ ना कुछ संबंध ऐसे रहे जिससे कि वो मिलिट्री बेसिस वहां पर कायम कर सके। ये भी कोशिशें हो रही हैं इस वक्त, मगर रूस तो चाहेगा नहीं कि अमेरिका किसी तरह की मिलिट्री बेस यहां पर सेंट्रल एशिया के अंदर बनाए। तो अमेरिका की कोशिश हो रही है कि जल्द से जल्द अफगानिस्तान को छोड़। मिडिल ईस्ट ऐसे भी अमेरिका के लिए स्ट्रेटेजिकली उसकी अहमियत कम हो गई है, क्योंकि अमेरिका के पास अपना तेल है, अब शेल गैस ऑयल है। मगर मिडिल ईस्ट की जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है तब भी, क्योंकि उसकी लोकेशन जो है, स्वेज कैनाल जो है, पर्शियन गल्फ है, ये इस वजह से उसकी बनावट जो है उसकी वजह से यहाँ बहुत इसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत है। अमेरिका चाहता है कि इस पूरे इलाके को किसी न किसी तरह स्टेबलाइज किया। पिछले कुछ सालों से ये एरिया बहुत ज्यादा टर्बुलेंस में था। अगर अमेरिका यहां से हटना चाहता है और चीन के कंटेनमेंट में लगना चाहता है, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, बाकी देशों के साथ, तो दो जगह नहीं कर सकता। वो इंडो पैसिफिक में नहीं और साथ में मिडिल ईस्ट में दो जगहों पर नहीं छा सकता। उसको एक जगह तो अपना बोरी बिस्तरा बंद करना पड़ेगा, और वो मिडिल ईस्ट है जहां पर ये बंद होने वाला है। इसी की वजह से अफगानिस्तान बंद हो रहा है, इसी की वजह से जो है जो सेंट्रल कमांड हेडक्वार्टर्स है कतर में, उसके भी वहां से बहुत से जो डिप्लॉयड फोर्सेस हैं वो भी हट रहे हैं वहां से इस वक्त, राइट। तो अमेरिका की पूरी तवज्जो जो है अब इंडो पैसिफिक में आ रही है, और आप देख रहे हैं G7 में अभी किस तरह से अमेरिका ने ये पूरा लीड किया था, किस तरह से डेमोक्रेसी की तरफ उन्होंने चार्ज किया था चीन को दबाने के लिए, ताकि चाइना के ऊपर हावी रहे पूरे। अब बात यह है कि जब अमेरिका यहां से हट जाता है अफगानिस्तान से, क्या वो ऐसी स्थिति बना सकता है मिडिल ईस्ट में जिससे कि उसको फैसिलिटेशन हो कि वो चीन का कंटेनमेंट जो है इंडो पैसिफिक में, वो उसके तरफ अपनी तवज्जो बढ़ा सके। ये पूरा एम। तो मैं समझा कि ये चीज मैप पर ज्यादा अच्छी समझ में आती है, और मैं अब 7-8 मिनट मेरे हो गए, अब इसको मैं इसका इस बैकग्राउंड को रखते हुए मैं अब मॉडरेटर के अंदर एंटर करता हूं, और जो सवाल मेरे तरफ आते हैं उनके मैं सवाल के जवाब दूंगा, और उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में आपके पास आऊंगा। अब मैं अपना स्क्रीन जो है उसको स्टॉप करता हूं। थैंक यू सो मच सैयद सर, क्योंकि मेरा पहला सवाल जो मैंने प्रिपेयर ही किया था वो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे ही किया था, और मुझे लगता है आपने बहुत ही अच्छे से उसे प्रोस्पेक्टिव में समझा दिया कि आखिरकार क्यों अफगानिस्तान न सिर्फ साउथ ईस्ट एशिया की जो रीजन है या पॉलिटिक्स है उसमें इम्पॉर्टेंट है, क्यों इंडिया के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम सब्सिक्वेंट क्वेश्चंस में कवर करेंगे। तो बहुत अच्छे से सर ने मैप्स के थ्रू, मुझे लगता है यहाँ जितने भी हमारे पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा प्रोस्पेक्टिव होगा बिफोर वी स्टार्ट द डिस्कशन। सर मेरा पहला सवाल तो विड्रॉवल से ही है सर, और हमने देखा कि जो यूनाइटेड स्टेट्स की जो प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन था उसने भी काफ़ी कोशिशें की, और अंत में इट इज़ प्रेसिडेंट जो बाइडन जिन्होंने एक रिजॉल्व लिया कि आखिरकार मुझे अब एक एंड डेट देनी है और मैं अब इसे विड्रॉ करूंगा, जिसमें उन्होंने कहा है कि भाई हम सितंबर 11 में हम ये विड्रॉवल इस साल तक खत्म करेंगे। सर हालांकि ये एक मेरिट बेस्ड डिबेट हमेशा से स्ट्रेटेजिक कॉलमनिस्ट के बीच में रही है कि क्या ये वॉर जो है वो स्ट्रेटेजिकली अमेरिका के लिए फेवरेबल रहा नहीं रहा, वो एक मेरिट बेस्ड डिबेट है सर। बट आफ्टर यूएस लीविंग दिस इंटायर रीजन, सर आप इमीडिएटली क्या चीजें देखते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करेगी रीजन को भी और ग्लोबल डिस्कोर्स को भी? देखिए, अच्छा, दैट्स अ गुड क्वेश्चन।
What I think about is that first of all, let's take a 5-year ban. एक 5 साल का ban लेते हैं हम, जिसके अंदर हम possibilities देखते हैं कि क्या हो सकता है. If the Americans leave by July, they're probably likely to leave because उन्होंने उनको advance कर दिया अपना जो withdrawal है from 11 September to virtually end of July. We are likely to see. पहले तो आपको याद रखना चाहिए कि अमेरिका की ये कोई नई चीज नहीं है. एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है अमेरिकन विड्रॉल के बारे में. इट इज कॉल्ड द लास्ट हेलीकॉप्टर. जब वियतनाम से भी हटे थे तो एक लास्ट हेलीकॉप्टर वहां से उड़ा था. सोमालिया से भी एक लास्ट हेलीकॉप्टर उड़ा. अब अफगानिस्तान से भी एक लास्ट हेलीकॉप्टर उड़ेगा. यूनाइटेड स्टेट्स जिस जल्दी में आया था अंदर, उसी जल्दी में निकल रहा है. It is not looking at leaving behind a stable environment. It is not even looking at how to protect and secure those elements who have supported the United States presence. This is unfortunate. Afghan National Army तकरीबन 2.25 लाख की नफरी है. अफगान नेशनल पुलिस तकरीबन 1 लाख की नफरी है. ये सब है हथियारबंद है. And the United States has gone only halfway in arming them, training them. इस कोशिश में कि शायद ये लड़ सके और तालिबान को पीछे रख सके. But everyone knows in the world कि ये तो it's a matter of time. The ANA and the ANP cannot stay there. Cannot fight this. The Taliban has got by and large the numbers. They've got the reach in the field. Intelligence है उनके पास. हथियार भी हैं उनके पास. सपोर्ट भी कुछ हद तक है. कहां से है ये मालूम है सबको. और तो इसलिए this is going to lead to a civil war situation for sure. There's no doubt about it. It could have been avoided by the United States. If nothing else, they could have left on a situation in which some kind of an acceptance with the Taliban that okay, the Taliban will come to power in a 2-month transition or a 3-month transition or whatever it is. But somehow that agreement did not come. सिविल वॉर तो आप देखेंगे. सिविल वॉर की वजह से आप डिस्ट्रक्शन भी देखेंगे. जितनी प्रोग्रेस की है काबुल में, जितनी प्रोग्रेस अफगानिस्तान में की है, कुछ हद तक they'll take a back step on it. So there is going to be a fair amount of turbulence inside Afghanistan for some time. I think the world is prepared for it. 20 साल हो गए हैं. उन्होंने देख लिया कि हर साल ये समर ऑफेंसिव होती है, तालिबान ऑफेंसिव करता है अपने. देखते हैं ये भी कि एवरेजली अगर देखा जाए तो अफगान नेशनल आर्मी के पिछले 7-8 साल में हर साल 7 से 8 हजार जवान मारे गए. This is nowhere in the world are you finding casualty figures like this. So the world has got used to it. Afghanistan has also got used to it. Which is why with all this turbulence happening in Afghanistan, it is not going to make too much of a difference to the world. दुनिया जो है ना बड़ी अजीब किस्म की है. They get used to things very quickly. The kind of violence which is there, everyone is going to start looking at the fresh objectives. कि अब क्या है? अब तो दुनिया का रीसेट हो रहा है. पैंडेमिक शायद खत्म हो जाएगा 1-1.5 साल में, तो दुनिया पूरा रीसेट करेगी. नए ऑब्जेक्टिव्स क्या है? चीन की तरफ देखने लगेगी, इंडो पैसिफिक की तरफ देखने लगेगी. अफगानिस्तान से तवज्जो हट जाएगी. Although I still think Afghanistan is far too important to be forgotten. Because as I explained on the map, it is in a very, very important geostrategic location. ये सेंट्रल एशिया का जो एंट्रेंस है, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से जो एंट्रेंस है, this is a very, very important location, which despite whatever may be happening in different parts of the world, there will be some competitiveness to establish influence here. तो मैं समझता हूँ कि if the Americans are not interested, the Russians are bound to be interested and maintain their relationship with different tribes, with different groups, warlords in Afghanistan. ईरान अपने इंटरेस्ट रखता है. ईरान के भी इंटरेस्ट है ग्रेट गेम में इस इलाके में. They've got their own, the Hazaras, the Shia element, after all, the 9-party alliance. The Iranians were the ones who were the sponsors of the 9-party alliance. और सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है यहाँ पाकिस्तान.
जिसके लिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू एंश्योर कि भारत का इंफ्लुएंस यहां ना हो, और वो हर चीज कोशिश करेंगे ये लाने के लिए टू मेक श्योर दैट इंडियन इन्फ्लुएंस डज नॉट कम इन कंदाहार, काबुल, हेरात एंड प्लेसेस लाइक दैट, क्योंकि वो समझते हैं कि इन जगहों के जरिए भारत जो है बलूचिस्तान के अंदर दखल अंदाजी करता है। ये परसेप्शन है पाकिस्तान का, उनका परसेप्शन है, ठीक है, रहने दीजिए उनका परसेप्शन, ठीक है। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को बहुत ही ज्यादा कोशिश करेगा, द नेशन विच विल बी द मोस्ट इन्वॉल्व इन एंश्योरिंग इट्स इन्फ्लुएंस एंड दैट इट बिकम्स तालिबान का एक पार्टनर बनकर, एंड इट विल बिकम लाइक एन एम्बेसडर ऑफ द तालिबान आउटसाइड टू डील विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तालिबान के पास काबिलियत नहीं है कि खुद वो दुनिया के साथ डील करे। आपको याद रखना चाहिए जब तालिबान 1996 में पावर में आए तो 3 देशों ने सिर्फ उनको रिकॉग्नाइज किया, पाकिस्तान, यूएई और सऊदी अरेबिया। अब सऊदी अरेबिया और यूएई का क्या इसके ऊपर वो होता है हम नहीं कह सकते, क्योंकि वो फॉर्मली अमेरिकन कैंप में है। क्या होता है सामने हम इसके बारे में, पाकिस्तान विल ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज, क्योंकि पाकिस्तान समझता है कि उनका इट इज देयर बैकयार्ड, वहां तो उनका तो सब कुछ चलता है वहां। तो आई एक्सपेक्ट अ डिग्री ऑफ टर्बुलेंस टू कंटिन्यू एट लीस्ट इनटू द नेक्स्ट 2 to 3 years, not as bad as it happened with Najibullah in 1991, मगर कुछ हद तक तो चलेगा। The Taliban, I don't think the ANA has the capability to fight it out. And already आप देख रहे हैं, I think 11-12 पोस्ट जो हैं ANA के have already surrendered in certain areas, surrendered to the Taliban. And जैसे अब वक्त आता है जुलाई के पास, मैं समझता हूँ कि ये और ज्यादा बढ़ेगा। These surrenders will take place to a great extent, because to put it fairly that the Americans and the rest of the world, international community, has not enabled the ANA to have the capability to fight the Taliban. That is absolutely clear. थैंक यू सर। सर मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, आपने इसे बहुत अच्छे से, मतलब मुझे लगता है बहुत प्रोस्पेक्ट ले किया सर, कि आखिरकार हमें इमीडिएटली क्या देखना चाहिए। और सही बात है कि सर हमने ये देखा भी है कि अब अफगानिस्तान से कोई भी न्यूज़ आती है तो वो एक आम न्यूज़ बन जाती है, आफ्टर हैविंग सो मच ऑफ कैजुअलिटीज, ह्यूमन लाइव्स। इसके बाद भी इतना ये अब आम होता जा रहा है, ये एक बहुत सोचने का भी विषय है सर। सर इसके ही मैं सोशियो पॉलिटिकल एस्पेक्ट में सर मेरे कुछ पॉइंटेड क्वेश्चंस हैं, क्योंकि मेरे को हेड्स के ही तहत मैं चाहूँगा कि आप उसे ब्रीफली एक बार इनकाउंटर कर लें, आराम से उसे समझ लें। सर पहला तो सवाल इसी का था कि सर अमेरिका जब गया था अफगानिस्तान में, तो उन्होंने कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉमिस की थी वहाँ पे। बुश एडमिनिस्ट्रेशन ने जब ये किया था, तो बुश एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कहा था कि हम वहाँ नेशन बिल्डिंग करेंगे आफ्टर, जब वहाँ से एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं, जो टेररिस्ट्स हैं, उनको खत्म करने के बाद नेशन बिल्डिंग करेंगे। एंड सर उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर कई सारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस तो बने, लेकिन वो इंस्टीट्यूशंस आज के समय में इतने रेलिवेंट या इतने स्ट्रांग नहीं है कि वो किसी भी एक सडन ट्रांजिशन, जैसा कि अभी आप डिस्कस कर रहे थे, हमने पूरा उसे लेंथ में आपने जब बताया सर, तो वो इतना सडन ट्रांजिशन क्या हिकअप्स कर पाएंगे? क्योंकि अभी ही पिछले जब हम इलेक्शंस की ही बात करें तो दोनों ही जो राइवल कैंडिडेट्स थे उनके बीच में काफ़ी लड़ाई झगड़े, मतलब कहा जाए, हुए थे, और दोनों ने ही अलग अलग अपनी शपथ ग्रहण भी लिया। और हालांकि डील तो हुई, बट फिर भी अभी भी हम देखते हैं कि अफगानी इस्टेब्लिशमेंट जो है, खास करके जो पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट, उसमें अभी भी फ्रिक्शन दिखाई देता है। दूसरा सर पॉइंटेड सवाल ये है कि हम अफगान सोसाइटी अगर हम देखें तो एक इस्लामिक कल्चर से कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस दिखाई तो देती है, क्योंकि वहाँ की लगभग 90% से ज़्यादा जो आबादी है वो इस्लाम फॉलो करती है। लेकिन हम देखते हैं कि उनकी एथनिसिटीज़ में काफ़ी, जैसे कि आपने हज़ारास की बात की, तो सबसे ज़्यादा तो उनके यहाँ पश्तून है, उसके बाद ताजिक है, उसके बाद सर आपके हज़ारा 9%, और लगभग आप ही इसके उज़्बेक्स भी लगभग 9%। यस सर। तो इतने अगर आप देखें इन एथनिक फॉल्ट लाइंस का हमेशा से एक्सट्रीमिस्ट जो एलिमेंट्स रहे अफगानिस्तान में, वॉरलॉर्ड्स जो रहे, उन्होंने बहुत ज्यादा इसे एक्सप्लॉइट किया अपने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए। तो सर इस पूरे दौर में जब इतनी सारी चीजें अभी भी अनरिजॉल्व है सर, जो हमारा नेशन बिल्डिंग का जो इंटायर कॉन्सेप्ट जो अमेरिका ने बताया था, हम देखते हैं कि इतनी सारी अभी इश्यूज अनरिजॉल्व हैं, और अमेरिका का ड्रास्टिकली यहाँ से चला जाना
without having a comprehensive peace deal finalized. सर किस तरीके से ये क्योंकि सोशियो पॉलिटिकल अगर ये इश्यूज ऐसे ही रहेंगे तो जाहिर सी बात है इसकी इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान में होगी और पाकिस्तान से फिर ये स्पिल ओवर इंडिया में भी आएगा सर. सो आपका सर इस पे व्यू पॉइंट क्या है सर? ये सवाल का जवाब बहुत लंबा जवाब हो जाएगा, मगर है बहुत ये पॉइंटेड सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, बिकॉज ये जड़ है इस चीज की. द सोशियो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ अफगानिस्तान, जब तक ये क्लैरिटी ना हो इसके बारे में, मैं समझता हूं कोई देश अगर समझता है कि वो जाकर अफगानिस्तान के ऊपर हावी हो सकता है तो सरासर गलत है. अमेरिका जो है बड़ी जल्दबाजी के साथ ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम में, यू रिमेंबर, गया था इनटू अफगानिस्तान. इट वेंट इन देयर विद दैट आफ्टर 9/11 डेस्परेशन के साथ गया था. मिलिट्री ऑपरेशंस कंडक्ट किए, कैप्चर किया, नॉट द होल ऑफ अफगानिस्तान, पोर्शंस ऑफ इट, इंपॉर्टेंट सेंटर्स कैप्चर किया, मोर इंपॉर्टेंट सिटीज को कैप्चर किया और उसके बाद बैठ गए. 2-3 things the Americans did not. Number one, they did not study the history of Afghanistan sufficiently. कि इतिहास में मेरे ख्याल कुछ वक्त तक महाराजा रंजीत सिंह थे जिनका अफगानिस्तान के ऊपर to an extent he had defeated the Afghans to an extent and established a rule over portions of Afghanistan. Otherwise, the Afghan region has not been subjugated under any. दूसरी चीज जो अमेरिकन गए वहां पर, आई एम सरप्राइज्ड दैट द अमेरिकन आर्म्ड फोर्सेस जब वियतनाम में रहकर 25-20 तकरीबन 15-20 साल रहकर और उसके बाद 2010 में जाकर वो अपनी कॉइन डॉक्ट्रिन बना रहे थे और पूरी जो हैंडलिंग थी अफगानिस्तान की, इट सीम टू बी ओनली अ मिलिट्री ओरिएंटेड हैंडलिंग. हालांकि जैसे आप कह रहे हैं बिल्कुल सही तरीके से 10 साल के बाद एक जनरल आया, जनरल पेट्रियस, 2010 में 11 में, जिसने पहचाना कि अफगानिस्तान के अंदर इस तरीके से हथियार निकालकर और फायर करके आप हावी नहीं हो सकते. यू कैन नॉट रूल अबव अफगानिस्तान. जब तक आप इसकी कल्चरल जो चीजें हैं उनको ना समझें, सेंसिटिविटीज को ना समझें और अपने ट्रूप्स समझाएं, अपने एडमिनिस्ट्रेटर्स को ना समझाएं. अमेरिका इस मुद्दे के साथ आया था कि जल्दबाजी में 2 साल के अंदर सब खत्म करके अफगानिस्तान का रवैया चेंज करके पॉलिटिको स्ट्रेटेजिक सब चीज कल्चर यहाँ का बदल के, एंड इट नॉट रियलाइजिंग हिस्टोरिकली इट्स नेवर पॉसिबल टू डू अ थिंग लाइक दिस इन दिस रीजन एट ऑल. तो जो अप्रोच था अमेरिका का वो ही गलत था. 2008 में 9 में ओबामा ने कहा कि ओके आई विल हैव अ सर्ज, मगर मैं 2-2.5 साल के लिए सर्ज ऑफ ट्रूप्स करूंगा, 1,40,000 ट्रूप्स यहां परमिट करता हूं मैं. उसके बाद बाय 2012 आई वांट टू स्टार्ट विड्रॉइंग. टाइमलाइन भी बना दी विड्रॉल की. दिस इज नॉट द अप्रोच, दिस इज नॉट द काइंड ऑफ अप्रोच. पूरी दुनिया इसको क्रिटिसाइज किया इस अप्रोच को. द अमेरिकंस डिड नॉट हैव द स्टैमिना. अब वो हम सबको मालूम है कि अमेरिका में बॉडी बैग कल्चर जो है, दे आर वेरी अवर्स टू इट, क्योंकि उन्होंने 58,000 बॉडी बैग्स देखे हैं वियतनाम से आके. उससे पहले बेशुमार वर्ल्ड वॉर 2 वर्ल्ड वॉर में देखा है उन्होंने, मगर वियतनाम से ही 58,000 बॉडी बैग आए. यहां पर उन्होंने कंट्रोल काफी रखा, इतने ऑफेंसिव ऑपरेशंस नहीं लड़े और अफगान नेशनल आर्मी से ही लड़वाया, उन्हीं की कैजुअल्टी ज्यादा हुई. मगर इस जरिए से, इस तरीके से आप विदाउट योर ओन इन्वॉल्वमेंट you are not going to be able to control a region which you think you want to control. तो मैं समझता हूं कि गलतियां उन्होंने अब रियलाइज करी, ये गलतियां रियलाइज की हैं उन्होंने. और जो उनका विड्रॉ इस वक्त हो रहा है जल्दबाजी में, जैसे मैंने कहा कि जल्दबाजी में हो रहा है, जैसे जल्दबाजी में आए थे वैसे जल्दबाजी में जा रहे हैं, डिस्टेबलाइज करके. जो 20 साल में हो सकता था, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग हो सकती थी, एडमिनिस्ट्रेशन बन सकता था, होल न्यू जनरेशन could have been brought up in terms of allowing it to look at the modern ways of administering Afghanistan. वो नहीं हो पाया.
क्योंकि अमेरिका के अंदर दे नेवर हैड द स्टमक टू स्टिक इट आउट। अब 1,40,000 ट्रूप्स आप 2 साल 3 साल के लिए रखिए और उसके बाद यू रिड्यूस योर ट्रूप्स डाउन टू 9,000, 10,000, 12,000 एंड होप कि अफगानिस्तान जैसे देश के ऊपर आप रूल करके और स्टेबलाइज करेंगे। These are things, it's not possible to do that. So there have been huge mistakes. There have been huge mistakes, and there is no doubt about it that Afghanistan is going to suffer because of this. There is going to be a destabilization of Afghanistan. And मैं समझता हूं कि इसका असर, जो आपने आखिरी चीज जो कही बहुत इंपॉर्टेंटली, एक चीज जो सिर्फ ये हुई है कि अमेरिकन प्रेजेंस से जो मैं समझता हूं रेडिकलाइजेशन, इस्लामिक रेडिकलाइजेशन होकर और ईस्टवर्ड मूवमेंट जो था, अगर हो सकता था, उस पर बहुत हद तक कंट्रोल हुआ है बिकॉज ऑफ अमेरिकन मिलिट्री प्रेजेंस। अब ये मिलिट्री प्रेजेंस उठ गई। पाकिस्तान जिसका मुद्दा है since 1977 जियाउल हक के वक्त टाइम से ये है of using extremist radicalism to make it as a strategy for for actually establishing its own influence in the region. अगर वो उस तरह का रवैया आ जाता है वापस, that would be a very sorry state. But I don't think the Americans and the rest of the world will permit that kind of thing. This is why the Americans want to stay back to some extent in the region. पाकिस्तान के अंदर बेसिस हो जाए, सेंट्रल एशिया में कुछ बेसिस हो जाए, मिडिल ईस्ट से surprisingly they are pulling out their bases. Well, they are hoping of improvement of relationship with Iran, जिसके वजह से थोड़ा stabilization of Middle East हो जाए और ताकि यहाँ पर उनको अपने इतने ज्यादा ट्रूप्स ना छोड़ने पड़े। अब एक लेवल ऑफ डेस्परेशन आ रहा है कि चीन की तरफ जाना है। They have to physically start looking at the containment of China. Because इतने साल हो गए, तकरीबन 15 साल से अमेरिका बात कर रहा है about containment of China, but अभी तक उसने कुछ demonstrate नहीं किया है, and it's about time that that demonstration started. थैंक यू सैयद सर। और मैं वहाँ पर सर आपने पाकिस्तान का जिक्र किया था, वो मेरा वैसे नेक्स्ट मैं चाहता था कि वो सवाल हो, लेकिन मैं सर अभी उसे पूछना चाहूँगा कि सर हमने अभी 9 जून को जो अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है जेक सलिवन, उन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग की थी और उसमें जब उनसे ये पूछा गया कि पोस्ट अमेरिकन एग्जिट में क्योंकि हम पूरा रूट जानते हैं सर कि किस तरीके से पहले तुर्कम बॉर्डर और इन सब तरीकों से फिर वो आते थे, एवरीथिंग इज देयर सर, उनसे जब ये पूछा गया तो सर हमने ये देखा कि उनका जो डिप्लोमेटिक रिस्पांस रहा कि जो पाकिस्तान है हम उनसे बातचीत में हैं और उन्होंने एक हिंट ड्रॉप किया उसकी, हम प्राइवेट चैनल्स के थ्रू हम वहां पर बेसिस अभी भी जो हमारे ड्रोन बेसिस हैं उसके ऊपर अभी बातचीत चल रही है। लेकिन हमने पाकिस्तान की ओर से ये रिस्पांस सुना कि उन्होंने, अगर आप देखा जाए तो पाकिस्तान में इट इज मतलब इसे ढकी छुपी बात नहीं है कि आखिरकार वहां का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कहाँ से ज्यादा चलता है, एंड सर वहां से कोई डिनायल नहीं आता, लेकिन जो सिविलियन गवर्नमेंट है वो ये कहती है कि नहीं हमने कोई बेसिस नहीं दिए हैं, हम किसी तरीके से हमारा जो खुद मुख्तारी का जो उनका कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी, हमने उसको किया नहीं है। लेकिन ऐसी सर कई सारी थ्योरीज हैं और कई सारे ऐसे क्वेश्चंस अभी बातें हो रही हैं कि ये पॉसिबल बेसिस जो है वो बलूचिस्तान में हो सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं केपीके में हो नहीं सकता बिकॉज पश्तून डोमिनेटेड इलाका है, वहां पे उनको काफी प्रॉब्लम्स आएंगी। सो बलूचिस्तान में, अब सर बलूचिस्तान में इंटरेस्टिंग केस ये है कि वहां पे चाइनीज इन्वेस्टमेंट है सर, तो आखिरकार जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाइनीज बनाएंगे और वहां पर अमेरिकन को आप बेस देंगे, तो ये एक जो जैसे कि अफगानिस्तान का जो किस्सा हुआ कि भाई वहां पे सोवियत रूस आया, 2 पावर्स लड़ी और नुकसान उस देश का हुआ। अब पाकिस्तान के केस में सर यही कहीं ना कहीं आशंका जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं ये यहां पर भी यही चीज हो सकती है। तो सर आपको क्या लगता है कि क्योंकि ये अगर यहाँ पर ये कॉन्फ्रंटेशन होगा तो जाहिर सी बात है सर नॉन स्टेट एक्टर्स, क्योंकि अमेरिका की काफी एक ब्रीफ हिस्ट्री भी रही है सर, जियाउल हक को किस तरीके से उन्होंने मतलब एक डिक्टेटर के साथ भी उन्होंने ट्रेड किया, मतलब एक तरह से आई एम नॉट, इट इज नॉट अ गुड वर्ड टू यूज ट्रेड, बट उन्होंने उनकी मदद ली अफगानिस्तान में। सर इसी तरीके से फिर नॉन स्टेट एक्टर्स होंगे, फिर पाकिस्तान की डिस्टेबलाइजेशन, वही चीज सर कि ये स्पिल ओवर इंडिया में आएगा ही। सर आप इस चीज को कैसे देखते हैं? ओके,
और मैं आपके सवाल को डायरेक्टली लिंक कर देता हूं टू सेव टाइम टू पोटेंशियल इफेक्ट्स ऑन जम्मू एंड कश्मीर। मैं डायरेक्टली उसको लिंक कर दूंगा। देखिए, अगर अमेरिका कुछ आज डिमांड कर रहा है या नेगोशिएट कर रहा है, तो इट इज नॉट फॉर प्रेजेंस ऑफ 100,000 ट्रूप्स, इट इज फॉर प्रेजेंस ऑफ वेरी मिनिस्क्यूल नंबर ऑफ ट्रूप्स। ड्रोन ऑपरेशंस चलाने के लिए मे बी एन ऑड स्क्वाड्रन ऑफ हाई क्वालिटी एयरक्राफ्ट, वेरी हाई टेक एयरक्राफ्ट, और कोई स्पेशल फोर्सेस के कुछ डिटैचमेंट्स sufficient to be able to be self-sufficient. And ये बलूचिस्तान के कुछ बेसेस में, पाकिस्तान के मिलिट्री जो बेसेस हैं, उनके अंदर definitely they can be adjusted with Pakistan security. That is no doubt about it. Question is कि अगर ये accept कर लिया पाकिस्तान ने, तो लगता है बड़ा ये कि as if the Pakistani sovereignty has been compromised etc. बट एक चीज याद रखिए, जो हालत है पाकिस्तान की आर्थिक उसके तरफ towards its economy, we all know what state of economy Pakistan is in the world. They're going around with a begging bowl everywhere. The last of tranche of the IMF loan, $6.6 billion जो लोन था, उसका लास्ट ट्रांच अब आएगा उनके पास। उसके बाद अगर दोबारा हाथ वो खड़े कर देंगे, तो they are happy to do anything for the United States because they know ultimately अगर IMF से कुछ चाहिए, वर्ल्ड बैंक से कुछ चाहिए, तो ultimately without the United States तो कुछ मिलेगा। तो to that extent denial तो पाकिस्तान का तरीका ही है। I mean their whole strategy is denial. They always talk about denial. पूरा कश्मीर में जो हो रहा है, for the last 30 years they've been denying it. Right? So आपके सामने वो एडमिट तो नहीं करेंगे कि हम अमेरिका को यहाँ पर रख रहे हैं एक्सेट्रा। इवन शुरू में आप देखेंगे कि बेसिस अगर बन गए तो उसको भी डिनाई करेंगे, कुछ हद तक उनको भी डिनाई करेंगे यहाँ। तो there is going to be some surreptitious kind of an agreement, and the Americans will not be comfortable to leave Afghanistan without having some kind of a surveillance elements in the nearby zone vicinity. They can't trust the Pakistanis alone with the Taliban, and definitely they would want to have their some kind of a presence of their own. दिलचस्प चीज आपने बहुत कही कि the Chinese presence in Balochistan, yes it is there, from Gwadar upwards it is all there, but the kind of strength that we are looking at is restricted to a few air bases and nothing more than that. So I don't think this is going to impinge on Chinese presence in any particular way. अब जब बात आती है रिगार्डिंग नॉन स्टेट एक्टर्स एटसेट्रा, देखिए if this whole thing breaks out into a civil war kind of conditions situation in Afghanistan, तो अगले 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक ये सिचुएशन चलती रहेगी and Pakistan's entire attention is going to be on Afghanistan. जिस तरह से 80s में थी, उसी तरह से attention पूरी वहां पर रहेगी. They want the Taliban to be ruling. They will provide the conduits for all mercenaries. अगर mercenaries वो बुलाते हैं, लाते हैं कहीं से, पाकिस्तान के अंदर भी बहुत लश्कर-ए-तोयबा etc. तो of course they are oriented towards Jammu and Kashmir, but there are groups which are oriented both to Afghanistan and within Pakistan itself. तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ही देख लीजिए आप, वो शायद इसके अंदर they will also get involved. So Pakistan has got no dearth of people who are going to pick up weapons. हथियार की कमी तो पाकिस्तान के अंदर है ही नहीं. अब आप जाइए डेरा शाह इस्माइल में, आप जाइए अगर खैबर पख्तूनख्वा में, तो वहां तो गोलियां जो है वो बर्नियों में, जैसे अचार मिलता है वहां पर, वैसे वो बर्नियों में वहां पर गोलियां मिलती हैं. ठीक है, तो that is not a restrictive factor at all. So there is going to be a tremendous amount of turbulence of Pakistan to Afghanistan etc. इसके बीच में क्या हम कैन बी एक्सपेक्ट कि कुछ इनका फोकस जो है वो जम्मू कश्मीर की तरफ आ जाएगा? Is the Taliban really interested in Jammu and Kashmir? To my mind, no. नहीं. और अभी recent statement भी, कल परसों statement भी दिया है तालिबान लीडर्स ने, they really don't look at Jammu and Kashmir as any area of particular strategic significance for them, right? इस्लामियत है यहाँ, इस्लामिक कनेक्शन है, ये सब है, ये तो अगला स्टेप है. पहले तो लड़ाई की बात कर ले, क्योंकि उसके बाद the next step of influence will come maybe in the later stages. If
if Afghanistan has to be administered, याद रखिए $8 बिलियन तो कम से कम चाहिए आपको साल में to just basically meet the needs of Afghanistan. ठीक है, जनरेट पैसा बहुत ही कम होता है, टैक्सेस वैक्सेस. अब जब टर्बुलेंस हो जाती है, लड़ाई हो जाएगी, सिविल वॉर हो जाएगी, तो कहां से टैक्सेस आएंगे, कहां से पैसा आएगा, कहां से एग्रीकल्चर आएगा. तब दुनिया फिर फूड सप्लाईज उनको देगी, यूनाइटेड नेशन उनको सपोर्ट करेंगे, कोविड कंडीशंस में उनको पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी आएगी मदद करने के लिए. ये चीजें होती हैं जिसकी वजह से होल्ड हो सकती है गवर्नमेंट. कितना होल्ड हो सकता है तालिबान के ऊपर वो अब निर्भर करेगा. At the administration, how you deal with them, how the United States, how the UN deals with the Taliban subsequently, and it will all be done through Pakistan. The problem यह है कि पाकिस्तान के जरिए होगा और पाकिस्तान की अहमियत जो है वो बढ़ती रहेगी. So what we thought that Pakistan's strategic importance is in the doldrums, उसकी economy is in the doldrums, etc. Actually on ground अगर हम देखें तो अगले 2-3 साल में पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक जो इंपॉर्टेंस है वो तो बढ़ रही है और बढ़ रही है. मेरे तरफ से my understanding and assessment is कि पाकिस्तान cannot handle Afghanistan, internal security of Pakistan and Jammu and Kashmir simultaneously. बड़ा मुश्किल है. तो इसलिए we have got a reprieve. I think the ceasefire will continue. I think infiltration बहुत ही कम होगा, networks को चलाने के लिए थोड़ी कोशिश होगी, etc. Time is on our side at the moment, next 2 years, and I think what the government of India is doing is one of the most sensible things at the moment. के इलेक्शंस हो जाए अगले 6-8 महीने 10 महीने में इलेक्शंस हो जाए और जो भी है डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट आ जाए. That's the best way to prepare yourself for the aftermath, because it's unpredictable at the moment कि इसका aftermath क्या होगा. बिल्कुल सैयद सर. और बहुत आपने अंत में जो इंडिया के इंटरवेंशन की बात बताई और इंडिया का जो डिप्लोमेटिक रिस्पांस है सर, अब मेरा क्योंकि इंडिया के भी अब इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा अफगानिस्तान में है, किस तरीके से हमने वहाँ की चाहे पार्लियामेंट बिल्डिंग्स हो, लाइब्रेरीज हो, डैम्स हो, कई तरीके के हमने इन्वेस्टमेंट वहाँ पे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हमने किए हैं. और अफगानिस्तान और भारत के बीच में अगर हम एज अ सोशियो कल्चरल एक्सचेंजेस की भी बात करें तो काफ़ी अच्छा हमारा कांटेक्ट उनके साथ रहा है और वो काफ़ी हद तक हम लोगों के साथ कनेक्ट भी करते हैं. सर अभी हाल ही में, क्योंकि मैं ये थोड़ा सा कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चन है सर, कि हाल ही में अभी जो हमारे EAM है श्री जयशंकर जी, उन्होंने 1 हफ्ते में 2 बार कतर का दौरा किया है. एंड सर ये हम डिप्लोमेटिक जो भी थोड़ा, क्योंकि मैं तो बहुत कम ही समझ पाया हूँ, लेकिन जितना भी हम समझ पाते हैं कि सर एवरी विजिट I lost you. 30 seconds के लिए we lost you. थोड़ा आपकी last 30 seconds. Yes sir, I'll repeat sir. कि सर जैसा कि हमने देखा कि विद इन अ वीक EAM की 2 बार विजिट जो है वो दोहा में हुई. एक बार केन्या जाते वक्त और एक बार आते वक्त उन्होंने वहाँ पे स्टॉप ओवर किया था. और सर ये हम जानते हैं बहुत अच्छे से कैलिब्रेट भी किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने जो उनके डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर उनके साथ मीटिंग की, उसके बाद फिर जो US के रिप्रेजेंटेटिव है मिस्टर जालिम है उनके साथ भी उन्होंने मीटिंग की. और सर उसके बाद हमने देखा कि एयरपोर्ट पे भी उन्होंने 2 जो कंट्री रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ उन्होंने बातचीत की. सर जो अभी के जो पूरे कॉन्टेक्स्ट हम देख रहे हैं कि EAM का दोहा में होना, और दोहा में ही जो है अफगानिस्तान की पीस टॉक्स अभी हो रही हैं तालिबान के साथ एंड ऑल दी स्टेक होल्डर्स. सर क्या मतलब, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे इंडिया को भी या हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें भी ये थॉट प्रोसेस आ रहा है कि हम एक रीजन में एक स्टेक होल्डर यानी तालिबान को छोड़ करके हम सोच नहीं सकते. अगर हमें अफगानिस्तान में हमारे जो इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट करना है और एक पीसफुल वे में हमें अगर आगे बढ़ना है, डेवलपमेंट अपना करना है, तो वो जरूरी है, उनको कंसल्ट करना होगा. और क्या सर आपको ये लगता है कि बैक चैनल्स में इंडिया अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए थ्रू दोहा एंड कतर प्रयास में है एंड चीजें आगे बढ़ रही हैं सर? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि हमारा तालिबान के साथ हैंडलिंग जो है किस दिशा में जा रही है.
जयशंकर साहब बेशक 2 दफे कतर में मिले। मैं शुरुआत अब इनफैक्ट मैं अपनी रिस्पॉन्स को शुरुआत करूंगा बाय टेलिंग यू दैट लोगों को समझना चाहिए ये कि ये हालात जो हैं अफगानिस्तान में ये बड़े ब्रॉड बेस्ड हालात हैं इस वक्त। देयर इज नथिंग स्पेसिफिक। नो वन कैन से कि इस एग्जैक्टली में जाएगी स्थिति। सो एवरीवन इज केटरिंग फॉर डिफरेंट सिचुएशंस एट द मोमेंट, राइट? कोई टेंजिबल्स नहीं है। तो जहां पर भी चांस मिल रहा है समझने का, उनसे जो इन्वॉल्व है इस प्रोसेस के अंदर काफी दिनों से, Qatar is one nation which has been involved in this process for the last 3-4 years now, right? And they handled the Trump administration's complete this thing. Zalmay Khalilzad के साथ उन्होंने पूरा जो है तालिबान के साथ किया है. So the repository of information, knowledge, etc. is all there at the moment. उन्हीं के पास, Qatar के पास. I think it's a very sensible thing that the External Affairs Minister has done by making use of his visits to stop over at Qatar and meet these people, right? एक तो देखिए जब ये ऐसी मीटिंग्स होती हैं तो ऑटोमेटिकली इसका प्रोजेक्शन भी होता है कि वी आर स्टेक होल्डर्स। पाकिस्तान तो हर कोशिश करेगा कि भारत जो है इज केप्ट आउट ऑफ द हाई टेबल एट ऑल टाइम्स। वो तो चाहते नहीं कि हम आसपास आए करें। सो वी हैव टू एस्टैब्लिश आवरसेल्व्स इन द आईज ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स। तो टेल पीपल वी आर अ स्टेक होल्डर। साउथ एशिया में अगर आप अफगानिस्तान को साउथ एशिया का हिस्सा मानते हैं तो इंडिया इज द कोर सेंटर ऑफ साउथ एशिया, सार्क का हिस्सा है after all. So how can you deny India a role? $3 billion we have spent on soft power. We are the ones who have created the soft power aspects of Afghanistan. Which other nation has come with that kind of a support? So we are equal stakeholders, absolutely. मगर पाकिस्तान नहीं चाहता है. That is quite obvious, right? So I think it is through continued diplomacy, continued consultation, every other day having a meeting of this kind with the concerned people. हमारे पास बहुत काबिल डिप्लोमेट्स हैं जिनको experience of Afghanistan है. You can count them. Many of them must have spoken in your sessions out here. अमर सिन्हा साहब को देखिए आप, या विवेक काटजू साहब को देखिए आप, ये इस तरह के फॉरेन सर्विस के हमारे बहुत हैं. जयंत प्रसाद साहब मेरे खुद के क्लासमेट हैं कॉलेज के, वो देखिए, उनको देखिए आप. So these are very, very qualified people who have got tremendous experience, right? And they have to be activated, and they are active at the moment. They have to do all the outreach, yeah, informal outreach. आपने बिल्कुल सही कहा. जो जिस तरह से बैक चैनल्स में बातचीत तो होनी चाहिए, वो बातचीत बेशक हो रही है, और उसी से ये जो हमारे टेंटिकल्स हैं वो काम कर रहे हैं. Nothing certain is going to emerge immediately. आपने देखा था कि पिछली दफे भी एक एग्रीमेंट पूरा हुआ था कतर में, किस तरह से पूरा प्रोग्राम पूरा वो फेल हो गया. It is not so simplistic. You are going to find a couple of agreements. Many of these agreements are going to fail in the future. ये इतना कॉम्प्लेक्स मामला है अफगानिस्तान का पूरा. तालिबान is not an entity to trust so easily. They are not even trusted by anyone internationally at all. हमने Of late, we are finding reports that India is in touch with Taliban. और मुझे मालूम नहीं कि इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी वो है. अगर है तो this is something जो बहुत साल से लोग recommend कर रहे हैं, and which is right. कि अगर आप you're anticipating कि a certain entity is about to come to power, is going to be militarily strong in a particular region, why shouldn't you reach out to them? There are no permanent friends, there are no permanent enemies. याद रखिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई परमानेंट फ्रेंड, कोई परमानेंट एनिमी नहीं है. आपके इंटरेस्ट है, आपके इंटरेस्ट बेशक है, और वो इंटरेस्ट जो है उनको बरकरार आपने रखना है. Let people understand this, that you are working essentially based upon your own interests. That is. थैंक यू सो मच सर. मेरा अंत में जो सर सवाल आपसे होगा वो थोड़ा इकोनॉमिक इंटरेस्ट को लेकर के होगा सर. इकोनॉमिक, अगर हम इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात करें तो सर आपने अपने पहले ही इंटरवेंशन में नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, जो कि इंडिया जापान का एक कोलैबोरेटिव, अगर देखा जाए उसमें रशिया को भी इन्वॉल्व किया गया, एंड सर इसकी राहदारी जो है, अगर हम कहें कि जो वे है वो चाबहार के थ्रू जो है अफगानिस्तान होते हुए फिर रशिया एंड देन सब्सिक्वेंटली आपकी जो यूरोपियन नेशंस है वहाँ कनेक्ट करने का सर है.
सर इसी के साथ साथ कई सारी मतलब रिसर्चेस भी की गई हैं कि अफगानिस्तान इज आल्सो हैविंग अ लॉट ऑफ मिनरल्स, यानी यहाँ पे बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज काफ़ी ज़्यादा हैं। यहाँ की जो टोपोग्राफिक जो भी स्टडीज की गई हैं सर, सो हम देख रहे हैं कि अब धीरे धीरे यहाँ पे अगर हम रीजन की ही बात करें, चाहे चाइना हो, चाइना ने हालांकि अभी ईरान में अपनी इन्वेस्टमेंट्स की हैं, उनके साथ डील की, और फिर अभी देख रहे हैं कि अफगानिस्तान पे भी उन्होंने भारत के साथ एक जब जॉइंट स्टेटमेंट दिया था कि हम अफगानिस्तान पे काम करेंगे, जब चाइनीज प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर का जो स्टेटमेंट था सर। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि अब धीरे धीरे अफगानिस्तान में इकोनॉमिक इंटरेस्ट को भी तरजीह दी जा रही है। वहाँ पे इकोनॉमिक्स जैसे भारत के तो अपने इंटरेस्ट हैं ही हैं, बट अब धीरे धीरे हम प्लेयर्स, अब जैसे ईरान की भी बात करें तो ईरान को भी अगर अपने देखा जाए रशिया से कनेक्ट करना है या सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ कनेक्ट करना है, तो वो अफगानिस्तान के साथ ही कर सकते हैं, बिकॉज पाकिस्तान के साथ उनके बीच बीच में मसले हो जाते हैं, फिर कभी कभी सब चीज़ें स्मूथ हो जाती हैं। सो सर अब इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात करें तो किस तरीके से आप देखते हैं कि अफगानिस्तान में अगर रिजीम चेंज होती है और तालिबान जो है अब अगर आते हैं, या अगर सिविलियन इंटरेस्ट भी रहते हैं, तो आप आफ्टर यूएस विड्रॉवल किस तरीके के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सर आप आगे बढ़ते हुए देखते हैं अफगानिस्तान? एक तो मैंने शुरू में आपको बता दिया था कि अफगानिस्तान को इकोनॉमिकली सर्वाइव करना है। There has to be a consortium of nations which will probably put together a certain fund for them, जो हर साल इंटरनेशनली 8-10 बिलियन डॉलर उनको प्रोवाइड करेगा, नहीं तो अफगानिस्तान का कोई फ्यूचर नहीं। ये नेशंस जो इस कंसोर्टियम में इन्वॉल्व होंगी will be fairly influential as far as Afghanistan is concerned. China is one of those nations, Russia is one of those nations. India will also have to chip in into it. The Americans are going to be. This is going to be an international kind of a consortium जो इसको पूरा करेगा। Rare earths is one thing जो अफगानिस्तान में काफी हद तक है। The type of things which China possesses वो शायद अफगानिस्तान में काफी हद तक है। और सुनने में आता है कि कुछ जो ब्लॉक्स हैं अफगानिस्तान में, कुछ मिनरल्स के ब्लॉक्स हैं, ऑलरेडी चाइना ने उनको खरीद लिया है, उसके लिए एटलीस्ट एडवांसेस उन्होंने प्रोवाइड कर दिए हैं। So China is already far ahead of many others as far as the economic exploitation of Afghanistan is concerned. The issue is कि आपको यहाँ से मिनरल्स तो मिल जाएंगे, रेयर अर्थ्स मिल जाएंगी, पावर भी, because hydroelectric power is something which is going to be a thing in the future. वो भी बहुत हद तक है। ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, all these areas which have got a surplus of water, right? अगर आप सेंट्रल एशियन रीजन में जाएं तो गैस, तुर्कमेनिस्तान में गैस, ट्रांस कॉकेशियस में तेल, ये सबको निकालने का जरिया जो है वो तो अल्टीमेटली आइदर वाया ईरान और वाया अफगानिस्तान। I think the best example is the TAPI pipeline. Yes, sir. The Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan, India pipeline. 10 billion dollars क्या इसका ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट वाज एस्टिमेटेड टू बी 10 बिलियन डॉलर्स। एंड अगर ये मटेरियलाइज होती, कहते हैं कि भारत की 25% गैस रिक्वायरमेंट जो थी वो पूरी हो जाती। मगर देयर आर स्टेक होल्डर्स इन द मिडल। पाकिस्तान नहीं परमिट करेगा। आपको पिछले 30 साल से पाकिस्तान ने एक्सेस नहीं दिया सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के लिए। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू हैपन थ्रू ईरान। हाउ विल द रिलेशनशिप विद ईरान इमर्ज? कल इलेक्शंस खत्म हुए हैं। आज ही मैं बैठ कर सुबह इलेक्शंस इसके ऊपर लिख रहा था, इलेक्शंस के ऊपर टिप्पणी कर रहा था मैं। How will the relationship with Iran flow? Our relationship with India, with Iran is a very, very important relationship. All the nations which want to exploit all these minerals, etc., in Afghanistan will have to look at the Iranian routes also. Of course, the Afghan, Pakistan, Karachi routes are always, Gwadar routes are all going to be there also available, but they will have to look at the Iranian routes. So, I foresee that the Taliban may probably, एक तालिबान का एक पहलू तो आइडियोलॉजिकल होगा, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं सब लोग के खवातीनों के खिलाफ, अगेंस्ट women and things like that. All those things will happen. There's no doubts about it. But the other side is the Taliban also realizes that एक हद होती है जहां तक आप अपने ही लोगों को, अपने ही इंसानों को, सिटीजन्स को कोर्स कर सकते हैं। उसके बाद when the people rise up against you,
then you cannot do anything. So therefore, there is a certain basic level of quality of life that they have to find. And उसके लिए उनको पैसा चाहिए. Economics, they have to get involved in economics. So it's they will attempt to probably try and professional. अब देखिएगा आप professional cadres कुछ ना कुछ अफगानिस्तान के जो लोग हैं इधर उधर दुनिया भर में हैं उनको बुलाया जाएगा. कुछ तो already हैं बड़े अफगानिस्तान में बैठे. Some of them will have to switch sides. Some of them will have to switch loyalties. And a cadre of administrators will have to be created to put Afghanistan back on the economic map. एक तो assistance होगी consortium of nations से, दूसरी जो है आपको अफगानिस्तान को आत्मनिर्भरता, typical Indian term, आत्मनिर्भरता करना की तरफ देखना पड़ेगा, right? And I think the Taliban is going to get serious. ये हद हो गई है. अब you can't everywhere just give it to radical ideology and things like that. ईरान में भी अगर आप देखें, ईरान में ये election, this election is a very awkward election. जो जीत हुई है इस इलेक्शन की, no one can guarantee ये जीत जो है चलती रहेगी इस तरह से. Because अगर आप सड़कों पे देखें वहां पर 30% इन्फ्लेशन, लास्ट 4 साल से एवरेज 40% इन्फ्लेशन चल रहा है because of the sanctions. You can't live with this kind of thing. You have to change your attitude towards the rest of the world. That's exactly how Taliban will also have to change in this matter. So I do see a professionalization of the administration of Afghanistan by the Taliban, and a little more consensus with the nations around the world to see Afghanistan progressing as a nation. Halaki, I think they will draw a line on the social aspects and will not permit people to impinge on them. थैंक यू सैयद सर. इसी के साथ हमारा ये मॉडरेटेड सेशन, आई बिलीव हमने हर उस एस्पेक्ट को कहीं ना कहीं कवर करने की कोशिश की, बिकॉज आई डू हैव कंस्ट्रेंट ऑफ टाइम एंड साइमल्टेनियसली मुझे क्वेश्चंस भी आ रहे थे एंड मैं उनमें से एक को रिकग्नाइज करना चाहूँगा एंड दैट इज आदित्य भट्ट जो कि हमें ज्वाइन कर रहे हैं. आदित्य, आर यू देयर? आदित्य, I believe he is facing some technical issues. So, sir, yes, sir. मेरे पास question है, sir. I shall give you the perspective. He is asking, sir, कि जिस तरीके से अफगानिस्तान में हमने देखा कि जो तालिबान है उसने बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव रोल काफ़ी हद तक प्ले किया और पूरी एक इंस्टेबिलिटी क्रिएट करके रखी. सर, इसी तरीके के जब हम देखेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान को कहीं ना पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान के इन फ्रिंज एलिमेंट्स को कहीं ना कहीं वो फंड करते रहेंगे. और जाहिर सी बात है सर, एक 90s का भी दौर था जब पश्तून जो खास करके अफगानी पश्तून होते थे वो आके कश्मीर में लड़ा करते थे. तो क्या ये एक फिर से एक अलायंस होते हुए आपको दिख रहा है कि नहीं, जिससे कि फिर से कश्मीर जो है हमारे इंटरनल इश्यूज में कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट जो है स्पिल ओवर इस चीज का होगा? सर, सवाल बहुत बढ़िया है. इस इम्पोर्टेंट के अपने थॉट्स को दिमाग में रखिए, उसके बाद छोटे लफ्जों में अपना सवाल बनाइए. योर क्वेश्चन इज वेरी पर्टिनेंट, राइट? व्हाट वी एक्सपीरियंस्ड इन द 90s, 89 in fact, okay, not 89, 89 to 91 जब कश्मीर में शुरुआत हुई, सो कॉल्ड मिलिटेंसी व्हिच बिकेम टेरर लेटर ऑन, तो शुरुआत तो पूरी लोकल थी. 89 December 90, early 91 was all local. 91 onwards, suddenly you found the advent of the foreign terrorists, right? And the foreign terrorists that time Pakistani कम थे और ये mercenaries अफगानिस्तान से ज्यादा थे. These mercenaries were from all over the world. सूडान के थे, अल्जीरिया के थे, इजिप्ट के थे, सबसे ज्यादा तो चेचनियन थी, चेचनिया से. Yes, sir. हमने तो बेशुमार कहाँ के टेररिस्ट वहां पर देखे कश्मीर में, ठीक है. मगर मैं आपसे एक सिंपल आपको एक चीज बताता हूं कि 1990 और 2021 में बहुत फर्क है. 31 साल बीत गए. भारतीय फौज का तजुर्बा बहुत बढ़ गया है. वी आर वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड काउंटर टेररिज्म एंड काउंटर इंसर्जेंसी फोर्सेस इन द वर्ल्ड. मैं तो कहता हूं कि जिन्होंने इंडियन आर्मी की राष्ट्रीय राइफल्स को बनाया, जिन्होंने उसको ढांचा दिया, उनको भारत को तो सलूट करना चाहिए. जनरल बीसी जोशी साहब ने किया था, ठीक है, 1990 में 91 में इसका की शुरुआत राष्ट्रीय राइफल. टुडे राष्ट्रीय राइफल्स इज वन ऑफ द फाइनेस्ट फोर्सेस.
But I'm not saying that that is the only way कि militarily अगर दोबारा तालिबान ने अफगान पाकिस्तान फॉरेन टेररिस्ट भेजना शुरू कर दिया तो हम सिर्फ उनको मिलिटरीली AK-47 के जरिए मारेंगे, नहीं, वो बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि हमने कश्मीर का ढांचा काफी हद तक सोशो पॉलिटिकली इकोनॉमिकली बदला है। ठीक है, अगर आप आज ही मैं पढ़ रहा था फिगर्स, अगर आप पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर देखें कि कितना फुटप्रिंट है एक्सपेंडिचर फॉर डेवलपमेंट, कितना फुटप्रिंट है, तो आप देखेंगे जब कंपैरिजन भारत के खिलाफ होता है टूवर्ड्स आर साइड, जहां कश्मीर हमारे पास जितना कश्मीर का हिस्सा है उसके अंदर जो 10 गुना ज्यादा, 10 गुना ज्यादा। तो यू सी no one is going to welcome Afghan terrorists and Chechen terrorists with open arms into Kashmir. Separatism, मैं मानने को तैयार हूं कि सेपरेटिज्म अभी भी कश्मीर में जारी है, बहुत बहुत हद तक सेंटिमेंट्स जारी हैं, काबिलियत नहीं जारी है, काबिलियत नहीं है। नेटवर्क्स, जिस किस्म के नेटवर्क्स 1990 में मैंने देखे हैं नेटवर्क्स वहां पर, और जिस तरह से पिछले 10 साल में नेटवर्क्स बने हैं वहां पर, जिस तरह से नेटवर्क बिछाए गए हैं वहां पर, फाइनेंस के, ड्रग्स के, हथियारों के, राइट, ओवरग्राउंड वर्कर्स के, दुनिया भर की चीजों के नेटवर्क्स वहां पर बने हुए, आइडियोलॉजिकल नेटवर्क्स, ठीक है, मस्जिद से मस्जिद कनेक्शन जो जिस तरह से बने, ये सब चीजें हैं नेटवर्क पर। इन नेटवर्क्स का काफी हद तक खात्मा हुआ है, इनके ऊपर कंट्रोल हुआ है, और ये बहुत देर में हमने, भारत ने भी कुछ गलतियां की, हमने देर में रियलाइज किया ये सब, मगर इसके पीछे जब हम गए और हमारी जो स्ट्रैटेजी थी हैज बीन वेरी वेरी सक्सेसफुल। और आखिरी चीज तो है कि 5 अगस्त 2019 के बाद मैं समझता हूं कि स्थिति काफी हद तक बदल गई। और बॉर्डर्स पे देखें तो आप काउंटर इन्फिल्ट्रेशन का जो हमारा ग्रिड है, बड़ा मजबूत ग्रिड है, एक लाइन ऑफ कंट्रोल फेंसिंग है वहां पर, सब है। तो अगर आप समझते हैं कि जैसे 1989, 1991 में लोग लाइन ऑफ कंट्रोल के आर पार ऐसा घूम रहे थे कि जैसे नेशनल हाईवे बने हुए हैं, वो रास्ता, वो स्थिति आज नहीं है। सो प्लीज डोंट थिंक दैट काइंड ऑफ थिंग टुडे। और मैंने एक मैंने जवाब दिया था कि देखिए, जब पाकिस्तान ऐसी स्थिति में होता है तो उसके पास 3 ऑप्शन होते हैं, 3 ऑप्शन होते हैं, याद समझिए कि 3 डोमेन होते हैं जहां पर उसको अपनी तवज्जो देनी पड़ती है। एक अफगानिस्तान की तरफ, एक कश्मीर की तरफ, और एक अपनी ही इंटरनल सिक्योरिटी। पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी बहुत बड़ी चैलेंज है। आपने देखा तहरीक लबायक पाकिस्तान, आप देख रहे हैं जो तहलका मचाया है उन्होंने, तो ये इसको भी हैंडल करना पड़ता है। पाकिस्तान ने 3 साल तक ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्म लड़ा है वहां पर। उनके 1/3 ब्रिगेड, पाकिस्तान के पास 66-77 ब्रिगेड है, 67 ब्रिगेड है, 22 ब्रिगेड एक साथ लगाए थे उन्होंने इसको लड़ने के लिए। तो जब अफगानिस्तान में तहलका मचा हुआ है, सिविल वॉर कंडीशंस हो रहे हैं, पाकिस्तान अब दखल अंदाजी कर रहा है, उनको कंट्रोल चाहता है, और इंटरनल सिक्योरिटी भी लागू है, इट इज स्टिल इन प्लेस। कश्मीर की तरफ तवज्जो देना मैं समझता हूं कि निहायत मुश्किल रहेगा पाकिस्तान। थैंक यू सो मच सैयद सर। और मुझे को बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, और क्योंकि मेरे पास टाइम के बहुत ज़्यादा कंस्ट्रेंट्स हैं, मुझे टीम ने बहुत मैसेजेस दे दिए हैं, और जितने भी मैं क्वेश्चन सर अभी मैं पढ़ पा रहा हूँ, लगभग उनको आपने बहुत अच्छे से अपने जो आपने पूरा आर्ग्यूमेंट्स रखे और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक हम उन चीज़ों को क्लियर कर चुके हैं, जवाब दे चुके हैं। सो आई एम वेरी सॉरी टू ऑल दोज पार्टिसिपेंट्स because I too have the constraints, and हम सैयद सर के साथ इसी तरीके के इनिशिएटिव्स के साथ आते रहेंगे। and I am promising you सैयद सर, आपको भी मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारा ये जो फाउंडेशन जो लगभग अभी 6 ही महीने जिसे हुए हैं, हम एक और इस तरीके का एक इनिशिएटिव लेके आने वाले हैं, दैट इज EIS, एम्ब्रियोनिक स्कॉलर्स इनिशिएटिव, ESI सॉरी। सो ये इनिशिएटिव हम लेके आएंगे जिसमें हम इसी तरीके के डिस्कशंस करेंगे ऑन वेरियस इश्यूज, और उसमें एक तरीके का पैनल डिस्कशन टाइप, इसी मॉडरेटेड सेशंस टाइप हम रखेंगे। एंड आई
डेफिनेटली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू जॉइन देयर, और वहाँ पे कुछ समय के कॉन्स्ट्रेंट्स हम कम करेंगे. और I'm very sorry for all those people who have texted me, but I could not take the questions right now. But I think you have been very efficient in the manner in which you have moderated the session. कि आपने ज्यादातर निचोड़ जो चाहिए इस मुद्दे का, इस पूरे सब्जेक्ट का, you have covered it actually. So I'm very happy to have participated in this. 99 log I can see have participated in this. It's a very good number, and I compliment you all. And Hrithik, I particularly compliment you for the manner in which you have conducted this and your own personal knowledge on strategic matters. Thank you so much, sir. मैं आपका धन्यवाद देता हूं सर कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल से हमारे लिए ये टाइम निकाला, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे सर आप यहाँ पर आए और आपने अपने पूरे प्रोस्पेक्टिव से बहुत सारी चीज़ें क्लियर की. हम जब भी मॉडल यूएन के सिमुलेशंस करते हैं, हम उन पे डिबेट्स तो करते हैं, डेलिब्रेशंस करते हैं, बट हम उन चीज़ों को एक प्रोस्पेक्टिव से समझ नहीं पाते हैं. उसमें प्रोस्पेक्टिव क्लियर करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम चीज़ों को ब्रॉडर एस्पेक्ट पे देखें. और क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस में हम ये देखते हैं कि कभी भी जो डिस्कोर्स है इंडिया में, ये काफ़ी ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं, स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं. तो इसी के लिए ये एम्ब्रियोनिक फाउंडेशन इस तरीके के इनिशिएटिव्स के साथ आता रहेगा. सैयद सर, आपका आना हमारे लिए बहुत एक तरीके से खुशी की बात थी. एंड थैंक यू सो मच सर. Thank you very much. All the very best.